بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک بات ہوئی۔ اب عطائے نبوت کے بارے میں بات ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز مشرف فرمایا۔ ابتداً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے احکامات تھے۔ پھر کچھ دنوں تک سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی آئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر و غرور، تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی۔ اس لیے ابتداء میں حکمت الہیہ کا مقتضی یہ ہوا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و اسلام کی اشاعت کا امر نہ کیا جائے تاکہ اولی میں لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء دعوت اسلام میں اپنی جان پہچان کے لوگوں میں ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے زید بن حارثہ کو دعوت دی، وہ مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی تصدیق کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی جن میں آپ خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی دعوت کو قبول کی اور آپ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن عدی اور ابو سلمہ مخزومی، خالد بن سعید بن عاص، عثمان بن معصوم اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں صہیب رومی، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی، عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے عبادات اور اعمال نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے سے دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، پھر اور لوگ بھی داخل ہونا شروع ہو گئے اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا۔ اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا تھا۔ 3 سال بعد جب کہ کثرت سے مرد اور عورت اسلام میں داخل ہونے لگے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ علی الاعلان لوگوں میں کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر اور قبائل قریش کے نام لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سب سے دریافت کیا، اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھ آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ مار کر دے، تم کیا میری تصدیق کرو گے؟ یہ سن کر سب کے سب نے یک زبان ہو کر بولے، بے شک ہم آپ کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے نہیں دیکھا آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم اپنے باطل عقائد کو چھوڑو اور خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے، اور فرمایا جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ دنیا کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس سے بہترین تحفہ نہیں لے کر آیا جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے دین اور دنیا کے فلاح بہبود لے کر آیا ہوں۔ خداوند عالم نے مجھے فرمایا ہے کہ تمہیں اس دین کی طرف دعوت دوں، اور خدا کی قسم میں اگر تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تم سے جھوٹ نہ بولتا، اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تم کو دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات کی قسم جو ایک ہے اور جس کا نہ کوئی سہیم ہے نہ کوئی شریک ہے، میں تمہاری طرف خصوصاً تمام عالم کی طرف عموماً اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، اور عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ
आपकी वही में इनके बुतों की हकीकत, आपकी वही ने इनकी बुतों की हकीकत खोल दी गई है, तो इनकी परस्तिश करने वालों को बेवकूफ़ ज़ाहिर किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे अदावत के लिए खड़े हो गए और इनकी एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आई और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म के बातों से रोक दें, इस तरह उनको और आप उनकी हिमायत छोड़ दें। अबू तालिब ने एक उम्दा पेराए में जवाब दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह कलमा हक़ को की नशर व इशाअत में सरगर्म और बुतों की इबादत से लोगों को मना करते रहे। जब अरब को इस पर सब्र ना हो सका, फिर अबू तालिब के पास आए और सख्ती से इनसे मुतालबा किया, या तो अपने भतीजों को बाज रखें वरना हम सब तुम्हारे खिलाफ़ जंग करेंगे, यहाँ तक कि फ़रीक़ैन में से कोई एक फ़ना हो जाए। अब तो अबू तालिब को भी फ़िक्र हुई और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में गुफ्तगू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुज़ुर्ग चाचा, खुदा की कसम अगर मेरे दाएं हाथ में आफ्ताब रख दें, बाएं हाथ में महताब रख दें और ये चाहें कि खुदा का कलमा छोड़ दूँ और उनको लोगों को राह हक़ की तरफ ना लाऊं, तो मैं इस पर हरगिज़ आमादा नहीं हूँगा, यहाँ तक कि खुदा का दीन, सच्चा दीन लोगों में फैल जाए, या कम अज़ कम इसी जद्दोजहद में मैं अपनी जान दे दूँ। अबू तालिब ने ये सब रंग देखा तो कहा, अच्छा जाओ बच्चा, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारी हिमायत और नुसरत किसी वक्त में नहीं हटाऊँगा। जब कुरैश ने यह देखा कि बनी हाशिम बनी अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और इधर मौसम हज करीब है, इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में सरगर्म कोशिश करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हक़ की मकनातीसी कशिश से सब वाकिफ़ हो जाएंगे। इसलिए इस अंदेशे में अब इनका मज़हब तमाम दुनिया के अतराफ़ में फैल जाएगा, तो सब ने जमा होकर यह तय किया कि मक्का के तमाम रास्तों पर अपना आदमी बिठा देंगे और अतराफ़ आलम से जो लोग हज करने के लिए आएंगे, इन्हें दूर ही से कह दिया जाएगा कि यहाँ एक जादूगर है जो अपने कलाम से बाप बेटे में और बेटे बाप में और बीवी शौहर में तमाम रिश्तेदारों में तफरीक डाल देता है, तुम इसके पास न जाओ। लेकिन जिस शराक को हक़ ताला शान रोशन फरमाए और उस पर फूंक मारने वाले की खुद उसी की दाढ़ी जल जाती है। खुदा की कसम, खुदा की कुदरत का ये तर्ज़ अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का काम कर गया। अगर वो ऐसा ना करते तो मुमकिन था बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना सुनते, लेकिन इनकी जद्दोजहद ने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्ताक बना दिया। जब कुरैश ने अपनी तदबीरों में नाकाम रहे और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आम होती जा रही है और लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो अब हर किस्म की इज़ार रसानी शुरू कर दी और मक्का के चंद औबाश लोगों को जमा करके इस पर आमादा किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मजलिस में इस्तेज़ा करें, जिस सूरत से मुमकिन हो सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाएँ। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज़ पढ़ रहे थे। जब सजदे में गए तो अबू जहल ने मौका गनीमत समझ कर इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक पत्थर से कुचल दें। लेकिन फ़ारसी का मक़ूल है, दुश्मन अगर कभी अस नगबान कभी तरस्त, अगर दुश्मन कभी है तो नगबान उससे भी ज़्यादा कभी है। जब पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचता तो हाथ कांप जाते, पत्थर हाथ से गिर जाता, रंग फ़क हो जाता और भागकर अपनी जमात के पास आता और कहता कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की जानिब बढ़ने का इरादा किया तो एक अजीब वज़ा का ऊँट मुँह खोले हुए मेरी तरफ झपटता और करीब था वो मुझे खा जाता। मैंने ऐसा ऊँट आज तक कभी नहीं देखा। ये वाक़या है, ये वो वाक़या जो कुफ़ार के मजमे के सब के सामने पेश आया और ख़ुद कुफ़ार के सरदार अबू जहल ने भी इसका इकरार किया। अबू जहल, उक़बा बिन अबी मुअय्यद, अबू लहब, आस बिन वाइल, असवद बिन यगूस, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, वलीद बिन मुग़ीरा, नज़र बिन हारिस, ये लोग हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर तकलीफ़ पहुँचाने के दर पर रहते थे। इनमें से किसी को इस्लाम की हम इनके नसब और सच्चाई, अमानत और इफ़्फ़त को खूब जानते हैं। उन्होंने हमें इसकी दावत दी कि हम अल्लाह एक अल्लाह परस्ती छोड़ दें, सच बोलें, बना फरमाया और खून बहाने और झूठ बोलने और रोका हमें नमाज इस पर ईमान ले आए। नजाशी ये सुनकर बहुत मुतासिर और कुरैश के दोनों कासिरों को वापस कर दिया और मुसलमान तकरीबन 3 महीने वहाँ अमन और आफियत के साथ क़याम करके वापस आ गए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त मुसलमानों की मरतब शुमारी 40 मर्द और 11 औरतों से जायद न थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम 우리를 버린 자들에게 진정한 절망이 무엇인지 보여주려 우리가 지켜낸 세상이
파괴할 권리도 잊지 않겠는가. और आपके सहाबा की इज्जत रोज़ बरोज़ तरक्की करती जा रही है और बादशाह हबशा ने भी मुसलमानों का इस्लाम किया। 자네의 선택을 기다리네. 함께하지 않겠는가. 가장 वरना हम इनसे बिल्कुल कता तालात इंदील की तरह लटका दिया और अपने कबीले में पहुंचकर तबलीग की। और कुछ आदमी आपकी साइड में मुसलमान हो गए मगर 제국을 지켰던 적도 ज़्यादा न हुए। 있었지. तो इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि 거대한 आप 광명을 मुझे दुआ 쓰러뜨렸고 कीजिए, मैं अपनी साइड में कामयाब हो जाऊँ। आप दुआ 사람들은 फरमाया जो 승리에 तबलीग करो नरमी से 환호했어. काम लो। खैर 우린 बिन अमल लौटे और 영웅이었네. लोगों को की तरफ बुलाया। लोग खुदा के फजल से अब ऐसे कामयाब हुए कि ग़ज़वा खंदक के बाद 70-80 घान मुसलमान होकर ग़ज़वा खैबर में साथ 아무것도 आए और 남지 शरीक 않았고 और जिहाद में शरीक हुए। इसी तरह इसी 나는 अरसे में 눈이 आप 멀었고 के चाचा अबू तालिब की वफ़ात हुई। 우리 둘에겐 ये कहानी हज़रत 어둠이 10 साल 깃들었네. माह शवाल के नसब पर पेश आया और इसमें तीन दिन बाद खदीजा की वफ़ात हो गई। इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को गम का साल कहा। 나는 우리를 버린 자들에게 इसके बाद और इसी साल में 진정한 हज़रत 절망이 सौदा और 무엇인지 보여주려 निकाह 하네. हुआ। बाद रिवायत में हज़रत आयशा के बाद से निकाह हुआ। 우리가 지켜낸 अबू 세상이 तालिब की वफ़ात के बाद कुरैश को मौका मिल गया कि 파괴할 आप रसूल को 권리도 इज़हार रसानी में कोई 잊지 न 않겠는가. छोड़ी जाए। जब आप रसूलों को अहले मक्का ने जब आप वसल्लम को अहले मक्का के इस्लाम कबूल करने 자네의 से 선택을 पैदा होने की 기다리네. नबी में आप माही सवाल 함께하지 않겠는가. लेकर ताइफ की तरफ अच्छा। तशरीफ़ ले गए। अहले ताइफ को कलमा हक़ की दावत दी। 1 माह तक मतवातर इनको तबलीग व हिदायत में मसरूफ़ हैं मगर कोई एक शख्स ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि ज़ालिमों ने अपने शहर से चंद खुबाश लोगों को सिखा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाएँ। ये संगदिल बदनसीब इस सरवर कायनात के दर पे हो गए कि शान रहमत लिल आलमीन अगर माने न हो तो एक जन्म लब में भी इनके सारी बदमस्तियों का खात्मा हो सकता था। ताइफ और ताइफ के बसने वालों का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिट सकता था। इन बदबख्त लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने शुरू किए जिससे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ ज़ख्मी हो जाते। ज़ैद बिन हारिसा जिस तरफ से पत्थर आता देखते उस तरफ खुद खड़े होकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते और पत्थर को अपने सर पर ले लेते। यहाँ तक कि ज़ैद का सर ज़ख्मी हो गया। बिलाखिर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह बाद ताइफ से इस तरह वापस हुए कि आपके टखने शरीफ लहूलुहान थे मगर ज़ुबान पर हर्फ बदुआ उस वक्त तक भी ना आता था। तो ये भाई चंद बात थोड़ा सा वाक़या आपके मज़ीद आपके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में वाक़या मेराज लेके आपके लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक मेरे लिए इसको राह निजात बनाए और लोगों को अमल की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। ईमान के साथ दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। ईमान के बगैर दुनिया भी ख़राब आखिरत भी ख़राब। अल्लाह पाक हम सब को कामयाब करे।